दिया नित रोज पावा कमलीवा जुदाई हार दो सीता सुनावा कमलीवा जनाबे आमिना जाया हलीमा गोद विच पाया जनाबे आमिना जाया हलीमा गोद विच पाया खड़ा के टुर गया दोवें मां कमलीवा मदीने मुकद्दर में ले जावन जे एक बारी मदीने जिगर तो खोल के पटियां वखावा कमलीवा जिदी अजतीक खालिक ने कदी भी गल नहीं मोड़ी जिदी अजतीक खालिक ने कदी भी गल नहीं मोड़ी न फिर क्यों मैं शफी अपना बनावा कमलीवा मैं चिट्ठियां गम दिया नित रोज पावा कमलीवा जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज। मैं पूछता हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज। और बतौर जनरल सेक्रेटरी मैं कहता हूँ कि भागलपुर बार में उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज। आज जो कश्मीर का एजेंडा है वो है मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस का रखना। G20 कॉन्फ्रेंस जो कि 22 से 24 मई को इंडिया में हो रही है, उसकी एक जो मीटिंग है और एक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है वो श्रीनगर में रखा जा रहा है, जो कि कश्मीरियों के असूलों और आज़ादी के तहरीक को दबाने के लिए ये खुल्लम खुल्ला जो है ये इंडिया की साजिश है। मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस और मीटिंग का इनकार कश्मीर की हैसियत, जुग़राफ़ियाई हदूद और कश्मीरी लोगों के साथ एक मज़मूम एजेंडे के तहत कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को तब्दील करने की कोशिश है, जिस पर भागलपुर बार के वकला में शदीद तशवीश पाई जाती है।
اور بہاولپور بار جو ہے اس G20 کانفرنس اور میٹنگ کا سری نگر مقبوضہ کشمیر میں انعقاد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور مذمتی اجلاس کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ اسی وجہ سے آج کیا جا رہا ہے۔ اور میں اپنے مقررین میں سب سے پہلے جو ہے وہ دعوت دوں گا کہ وہ اپنے الفاظ کا اظہار خیال کرے جان شکیب صاحب کو، کہ وہ آئے اور آ کر اظہار خیال کرے۔ ہو رہی ہے، یہ ان کا ایک ڈرامہ ہے اور ہمیں اس خیال میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے ہمیں بہت بڑا تحفظ ہے، اور ہم اس حوالے سے آواز بلند کرتے آئے، کرتے بھی رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پورا پاکستان اور وکلا برادری کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ جو متنازع علاقہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے، اس کو ان کے لوگوں کے مطابق جو ہے ان کی آزادی کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پہ ان کی خود حق خود ارادیت کو جو ہے وہ فوقیت دی ہے۔ یہ جو G20 کانفرنس اور میٹنگ رکھی گئی ہے، یہ بھارت کی بدنیتی ہے، جو کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنا اس کانفرنس اور میٹنگ سے متعلق اظہار خیال کریں۔ ہماری جوائنٹ سیکرٹری صاحبہ بیٹھی ہیں، انہیں دعوت دوں گا شاذیہ مکی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے بھی اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور مزاحمتی قرارداد کے حوالے سے یہاں پہ آپ لوگ سب موجود ہیں کہ انڈیا کی طرف سے جو میٹنگ کا انعقاد رکھا گیا ہے، تو اس کا مقصد جسٹر یہ دینا ہے بین الاقوامی طور پر کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے، وہاں پرسکون ماحول ہے، اور وہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارا ورژن ہے، یا آپ وہاں کے حالات سے واقف ہوں گے اور وہاں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ کیسے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ میٹنگ رکھنے کا، جسٹر دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ پرامن علاقہ ہے۔ تو یہ ان کا ایکٹ غلط ہے اور ہم اس کو پرزور طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کالش کے لیے کہیں پہ بھی کسی قسم کے اسٹرگل کی ضرورت پڑی تو ہم اپنی کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ خوش آمدید نائب صدر صاحب۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا ہمارے نائب صدر رانا شراز خالد صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر اظہار خیال کریں۔ سب سے پہلے تو میں سیکرٹری صاحب کا، صدر صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک ایونٹ جو ہے ارینج کیا ہے، اور یہ ہماری بہاولپور بار میں ہی کیا ہے، اس کے علاوہ کسی بار میں کہیں پہ بھی کوئی ایونٹ ارینج نہیں ہوا۔ اصل میں یہ ساری چیزیں جو آج G20 کی جو ہو رہی ہے کانفرنس، میں تھوڑا سا ہٹ کے ڈسکس کروں گا کشمیر کے حوالے سے کہ G20 ہے کیا۔ G20 جو ہے کیا کانفرنس ہے، کیا اس کا ریفلیکشن ہے، اور کیا ہم اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس وقت یہ اسٹرائک کر رہے ہیں، اس کی ایک ریزن ہے۔ G20 جو ہے وہ موسٹلی جو ہے 20 کنٹریز ہیں جو ہے یورپی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرتی کی سلگتی چھاتی سے بے تیغ شرارے پوچھتے ہیں، دھرتی کی سلگتی چھاتی سے بے تیغ شرارے پوچھتے ہیں، سڑکوں کی زبان چلاتی ہے، ساگر کے کنارے پوچھتے ہیں، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا، اے رہبر ملک کو کون بتا، یہ جلتے ہوئے گھر کس کے ہیں، یہ کٹتے ہوئے تن کس کے ہیں، تقسیم کے اندھے طوفان میں رکتے ہوئے گلشن کس کے ہیں، کچھ ہم بھی سنیں ہم کو بھی سنا، اے رہبر ملک کو کون بتا۔ صدر ذی وقار، شعوری زندگی میں قدم رکھنے کے بعد بیرونی دنیا سے ہمارا جو واسطہ پڑا، اس کا واحد سورس معاشرتی علوم تھا، جو بعد میں محض 50 نمبر کے مضمون کی حد تک محدود ہو کر
छोटी बड़ी जमातों से लेकर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के निसाब का हिस्सा बना और चला आता है। उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि सदा मुस्तफा फतोहार किसे कहते हैं, 3 जून 1947 का मंसूबा असल में था क्या, रेड क्लिफ अवार्ड्स क्या थे, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, और काजी आजम के 14 नुकात जो आज तक हमें याद ना हो सके वो क्या थे। उसी छोटे से किताबचे में हमने इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात और उनके मसाइल के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ हमें मिला कि इस धरती पर, इस दुनिया में एक जन्नत नज़ीर खित्ता, एक खित्ता अफजी है जिसे कश्मीर कहते हैं, जो पिछले तवील अरसा से किसी हिंदू बनिए के गज़ब, जुल्म और सितम का शिकार है। यहाँ पर कहानी ख़त्म हुई और फिर उसकी तशरीह, उसकी वजाहत पर सैकड़ों किताबें लिखी गई। बहुत ही जोशीले, बहुत ही चमकीले, भड़कीले, सुरीले उस पर अशार लिखे गए और सुर, ताल, लय के मेल मिलाप के साथ गीत, नगमे और मिली नगमे गाए गए कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शुआर से खुद को छुड़ाएंगे एक दिन। किस दिन जनाब सदर? ये डेट, टाइम, दिन हम इसका तयन आज तक ना कर सके कि हम उस जन्नत में किस दिन जाएंगे। उसके बाद हुआ क्या कि हमने उस कौम को ऐसे सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए और उसकी रोशनी में उनको हमने अंधा कर दिया। उन्होंने अपने दुखों का मदावा, उन्होंने हमें अपना मसीहा गर्दाना और अपना हीरो समझा। इसी वजह से हुआ क्या कि वो कौम हकीकत को देखने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में जिंदा है। वो आज भी आस उम्मीद लगाए बैठी है, वो हमें अपना हीरो समझती है और उस कौम ने अपने हीरो पैदा किए ही नहीं। आज भी वहां की माए जब अपने बेटे चलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुआ और एतमाद हमारी कौम हमारे बेटों पर करती है। वहां की बहनें अपनी झोलियां, अपने आंचल, अपने दुपट्टे फैलाकर दुआएं हमारी सलामती की करती है। वहां की बेटियां अपनी इज्जत, अपनी असमत, अपनी नामूस की हिफाजत के लिए हमारी तरफ देखते हैं और हम सिर्फ साल में एक दिन 5 फरवरी को यौम कश्मीर के नाम, उनके नाम का देते हैं। सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, नारे लगते हैं, तकरीरें होती हैं और उसके बाद खेल खत्म। लेकिन जनाब सदर, कश्मीर रोज चल रहा है, कश्मीरी रोज मर और कट रहे हैं वहां पर, पानी पिलाएंगे और हमारी बेइज्जती का आलम, हम अंधे गूंगे बहरे आज के टॉपिक के हिसाब से कि कश्मीर में उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने चले हैं। हमें जुर्रत है, हमें हिम्मत है, हम आज इस मौजू पर यहाँ पे करते हैं, हम रोक सकते हैं। हम अपने जज्बात का इजहार करने से खुद को रोकते हुए, हमारी बेहिसी भी पूरी उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी है। OIC हमारी जनाब सर सत्तू और भंग का कॉकटेल बनाकर पीकर सोई हुई है। यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल का ये इशू है ही नहीं, क्योंकि हम ठेकेदार हैं, हम बली वारिस हैं, हम ही उनके गुनहगार हैं कश्मीरियों के, और हम ही उन्हीं के कातिल। तो मुदावा हमें करना होगा, बातों से, तकरीरों से, नारों से, गीतों से, नगमों से निकल कर, इकबाल के शेर के मिसाल के निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, हमें हकीकी मानों में रस्म शबीरी अदा करना होगा। वगरना असूल कुदरत है, हम तारीख से भी सीखते हैं, अपने दीन से, अपने मजहब पर भी ईमान रखते हुए कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो खुदा का ये एक निज़ाम है, उसने जिस तरह से हाथी वालों का गरूर खाक में मिलाया, मेरे नज़दीक परिंदे फिर भी आएंगे। उन नन्हे परिंदों की चोंचों में, उनके बच्चों में इस बार जो छोटी कंकरियां नहीं होगी, उनके बच्चों में इस बार बड़े बड़े लंबे लंबे लिट्टर और छितर होंगे। और जालिमों पर तो उन्होंने बरसना ही है, लेकिन मेरे नजदीक वो हरूफ तहजीक के एतबार से सबसे
सबसे पहले नाम निहाद उम्मत मुस्लिमा के एक एक मुल्क पर बरसेंगे और जरूर वो अपनी गिनती सुबह से पहले भूल कर एक बार फिर एक से स्टार्ट करेंगे। अब हम कमजोर लोग, हम अंधे गूंगे बहरे, हम कर सकते हैं। चले कम से कम पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर हम अपनी एक महूम सी आवाज जो तकरीबन मादूम हो चुकी वो उठाने के लायक को भावलपुर बार को मैं खराज तस्वीर पेश करता हूँ आप सबको। और जितने बता के हम यहाँ बैठे हैं अगरचे मायूस कन है, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ कि आज हम इस हड़ताल को एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर के नाम की हड़ताल पे हम सब आराम कर रहे हैं, लेकिन काश ये हाल भी हमारा यूं ही भरा होता तो हमारी पूरी उम्मत मुसलमा को एक मैसेज जाता कि भावलपुर बार से जो हमेशा तारीखी बार है और हमेशा जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाती है, आप भी वो आवाज उठा रहे हैं। एक छोटी सी सजेशन दूंगा और तो हम कुछ कर सकने के काबिल नहीं कि एटलीस्ट सोशल मीडिया का दौर है। आप सब भाई अपनी अपनी फेसबुक पर G20 की कॉन्फ्रेंस की एक हम चाइना के भी ममनून है, वो हमेशा से हमारा दोस्त है, साथी है कि जिसने बाइकआउट कर दी है और उसमें हमारे जो मुस्लिम ममालिक अल्हम्दुलिल्लाह जिनके हम जान मारते हैं, जो हमारा किबला काबा है, जिनकी तरफ हमेशा हम सराय मदद के और किसी नज़र से देखते ही नहीं है, काश उनमें से भी कोई मुल्क ऐलान करता। तो आज अपनी फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स पर एटलीस्ट या तो आइकॉन चेंज करिए और कश्मीर के हवाले से कि सेव कश्मीर और बाइकआउट G20 कॉन्फ्रेंस में कश्मीर में जाए। बहुत कश्मीर के पहुंच के यहाँ इज़हार ख्याल किया। मुतफ़क़ा तौर पर भावलपुर बार जो है वो मज़म्मती करारदाद को मंजूर करती है और ये जो G20 कॉन्फ्रेंस और मीटिंग है इसके इनकार की एक पुरज़ोर मज़म्मती करारदाद को UNO और हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हुकूमत पाकिस्तान को भी भेजा जाएगा और हर फोरम पे इस आवाज़ को भावलपुर बार की तरफ से उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों। मेरी फोटो आ रही है।